डिस्कस करेंगे आज आज हम करेंगे डिस्कस इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स. We know that we have two types of covalent bonds. Number one is sigma bond and number second is pi bond. So sigma bond is developed, and sigma bond gets formed when the half-filled atomic orbitals of two bonding atoms overlap along the internuclear axis. That means they undergo head-on overlap like this. अगर हमारे पास A एटम है और B एटम है, these are bonding atoms, इस पे ऑर्बिटल अवेलेबल है like this, इस पे एक ऑर्बिटल अवेलेबल like this. So they overlap along the internuclear axis. That means they undergo head-on overlap. So यहाँ पर जो bond बनेगी that is called sigma bond. So sigma bond is considered as a strong covalent bond. A strong covalent bond है. So sigma bond gets developed by the head-on overlap of the half-filled atomic orbitals of the two bonding atoms. We can say that it is developed by the head-on overlap of the two half-filled atomic orbitals of the two bonding atoms. But our concern here is pi bond. हमारा यहाँ पर pi bond है. So pi bond is formed by the sidewise overlap of the two half-filled atomic orbitals of the bonding atoms. यानी pi bond develop होती है by the sidewise overlap of the half-filled atomic orbitals like this. If I take A here and B, this A has a orbital available, P orbital for example, इसका एक orbital available है. अब इनकी orientation इस तरह है कि there is no possibility of head-on overlap. यहाँ पर कोई possibility head-on overlap की नहीं है. So therefore they will undergo sidewise overlap. ये आपस में sidewise overlap करेंगी. So यहाँ पर जो bond बनेगी that is called pi bond. So pi bond is formed when the half-filled atomic orbitals of two bonding atoms undergo sidewise overlap, or sometimes we call this as lateral overlap. अब हम यहाँ पर एक molecule लेंगे, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे. Let us take the molecule. This is CH2 double bond CH2. यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है. This pi bond is here. This pi bond is formed here by the sidewise overlap of the two unhybridized orbitals, p orbitals, on two carbons. That means one hybridized p orbital is on one carbon and other is on other carbon. उनके sidewise overlap करने से ये यहाँ पर ये bond develop होगी. अब ये कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द टू p orbitals, the two half-filled p orbitals on two adjacent carbon atoms are two adjacent atoms. So in this case here the two p orbitals on the two adjacent carbon atoms must be parallel. वो आपस में parallel होनी चाहिए. For example, they must be parallel. ये parallel, उनकी orientation parallel होनी चाहिए for the formation of pi bond, yeah, for the sidewise overlap. So these orbitals on the two adjacent carbon atoms or two adjacent atoms must be parallel. ये आपस में parallel होनी चाहिए. And all atoms, जो ये all atoms हैं यहाँ पर, they must lie on the same plane. वो एक ही plane में होनी चाहिए. They must lie on the same plane. और एक बात, these orbitals which are going to undergo sidewise overlap must be parallel to each other and they must be parallel to the plane of the molecule. They must be perpendicular to the plane of the molecule. यानी plane of the molecule वो perpendicular होना चाहिए, आपस में parallel, और plane of the molecule को वो perpendicular होनी चाहिए. So ये कंडीशन है पाई बॉन्ड बनने के लिए. So एक और बात है, अगर आप यहाँ पर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वन फ्रेगमेंट, वी रोटेट द फ्रेगमेंट, दिस इज वन फ्रेगमेंट,
this other fragment. If you rotate one fragment with respect to the other across the carbon-carbon double bond, across the carbon-carbon triple bond, the rotation is restricted. ये rotation restricted है, rotation is not allowed. It is hindered rotation. ये hindered है. Why? इससे क्या होगा? इससे ये होगा, this rotation interferes with the maximum overlap of p orbitals. ये करते interfere with the maximum overlap of the of the p orbitals. वहाँ पर overlap फिर possible नहीं है, overlap वहाँ पर नहीं हो सकता. If we will allow the rotation, अगर हम allow करेंगे rotation across the carbon-carbon double or across the carbon-carbon triple bond, यानी एक फ्रेगमेंट को रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर, है ना, तो तब क्या होगा, उससे इंटरफेयर हो जाएगा, यानी प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा. इसका मतलब है रोटेशन इज हिंडर्ड अक्रॉस द कार्बन-कार्बन डबल और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. रोटेशन इज नॉट अलाउड. फॉर एग्जांपल, इफ वन कार्बन इज रोटेटेड, अगर हम एक कार्बन को रोटेट करेंगे थ्रू 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अदर कार्बन, उससे क्या होगा, पाई बॉन्ड विल ब्रेक, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी. Because in that case, the unhybrid 2p orbital on this carbon become perpendicular to this unhybrid p orbital. यानी ये वाला p orbital 2p unhybridized orbital of one carbon becomes perpendicular to the 2p unhybridized orbital of the other carbon. If we rotate one carbon through 90 degree with this other carbon, जब ये परपेंडिकुलर बन गए आपस में, इसका मतलब है नो साइड वाइज ओवरलैप इज पॉसिबल. उस वक्त साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइड ओवरलैप होने के लिए दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए. एक वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है पाई बॉन्ड, इट इज लोकेटेड above and below the plane. यानी जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई करता है उसके अबो और बिलो ये लाई करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड. सो इट always this electron charge cloud of the pi bond always this located above and below the plane of the bonding atoms, या below the plane of the molecule या bonding atoms. उससे क्या होगा, these electrons, उससे ये रिजल्ट निकलता है कि these electrons are always available, they are easily available for the attacking agent. वो easily available रहते हैं for the attacking agent. attacking agent के लिए वो easily available रहते हैं. So इन जनरल हम कह सकते हैं जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, so pi bonds provide the most reactive centers in the molecules containing multiple bonds. इसका मतलब है जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा, जो मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड करता है कंटेन, जो पाई बॉन्ड वहाँ पर होती है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर, वो मोस्ट रिएक्टिव सेंटर होता है फॉर द अटैकिंग एजेंट. सो नाउ we'll take some questions related to these previous topic and this topic. So number one question, first question, how many pi and sigma bonds are there in the given molecule? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमें गिनने हैं पाई और सिग्मा बॉन्ड्स. I will take CH3, CH double bond, CH2. हमें यहाँ गिनने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. पहले हम लिखेंगे इसको ऐसे CH, HH, CH, इस डबल बॉन्ड C, फिर H और H, इसके साथ 2 H. सबसे पहले आप याद रखो, जहां पर डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड में से एक होता है पाई, एक होता है सिग्मा. सो आप सबसे पहले हम गिनेंगे सिग्मा बॉन्ड से. यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से आते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, हो गए 8 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स. सो पाई बॉन्ड यहाँ पर है 1. सो डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पर एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड. सो इसमें आप गिन सकते हो, यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड्स 1 है. इसी तरह अगर हमारे पास होगा ऐसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर गिनने होंगे सिग्मा बॉन्ड्स 1 2, एक हो गया ये 2 और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। सो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही होती है सिग्मा बॉन्ड, हो गई 3 सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 2 है। सो यहाँ पर 2, सो ट्रिपल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, 2 होते हैं पाई। सो आप इस तरह आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ये गिन सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। सो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किया, दैट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ hybridization of carbon in the molecules CH3Br. Number 1 CH3 CH double bond CH2, yes CH3 C triple bond CH, ऐसे हम लिख दिया यहाँ पर। सो इसमें हम देखेंगे पहले इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें सिर्फ एक कार्बन है। सो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 ग्रुप्स और एटम्स लाइक दिस विदाउट एनी डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। सो जब सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे सारे, यानी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 एटम्स और ग्रुप्स बाय सिग्मा बॉन्ड्स, बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, उस कार्बन की होती है हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो इसका sp3 है। अब यहाँ पर हम लिखिए, हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट शुरू, फ्रॉम लेफ्ट वाले को हम लिखिए कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 1 है। सो दिस इज इस हाइब्रिडेशन का, इस कार्बन का होता है हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp3 है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये कार्बन H को H और दूसरी इस साइड से ये कार्बन का अटैच है। सो इट इज अटैच्ड टू 4 एटम्स और ग्रुप्स बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो देयरफॉर इट्स हाइब्रिडेशन इज, सो इसका हाइब्रिडेशन है sp3। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 हो गया, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड, ये दूसरे एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। सो जहां पर भी डबल बॉन्ड बना होगा ना, अगर कार्बन होगा डबल बॉन्ड बनाता है किसी एटम से या कार्बन से, सो इसका होता है sp2, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर भी ये कार्बन भी इन्वॉल्व है इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, सो कार्बन नंबर 3 का भी होता है sp2। अब यहाँ पर आप याद रखो, जिन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है बोथ कार्बन आर sp2, ये आप ऐसे याद रखो, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसी तरह अगर हम लेंगे ये वाला, हम लेंगे तीसरा मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 इट इज sp3, ये sp3 है। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन से इन्वॉल्व करते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, दे आर sp3। जो ये कार्बन है, कार्बन नंबर 2 इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह जो कार्बन नंबर 3 है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो आप याद रखो, जिन 2 कार्बन के दरमियान होता है ट्रिपल बॉन्ड, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, वो होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। आप इस तरह ये याद रख सकते हो। सो नंबर 3 आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, राइट द स्टेटस, ये क्वेश्चन है, और राइट द status of hybridization and shape of molecule। हमें मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडेशन बतानी है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस CH3Br, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चलिए हम इसका लेंगे CH3Br है ये। सो यहाँ पर जो कार्बन है इट इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 ब्रोमीन। मैंने आपको बोला कि कार्बन यहाँ पर अटैच है 4 ग्रुप्स को, 4 एटम्स को थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 होगा। सो जब भी कार्बन की होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगा इसका शेप। अब यहाँ पर आएंगे, सो यहाँ पर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, सो बोथ कार्बन आर इन द फॉर्म डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है। सो यहाँ पर जो कार्बन भी हमने पढ़ा, ये इसका जो हाइब्रिडेशन होगा दैट इज sp2। सो यहाँ पर शेप होता है, जब भी sp2 हाइब्रिडेटेड कार्बन होगा उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर,
ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गए, प्लेनर। इसी तरह यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर जो कार्बन होगा दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, उसकी हाइब्रिड होगी sp, और इसका शेप जो होगा मॉलिक्यूल का दैट इज लीनियर, ये लीनियर शेप होगा मॉलिक्यूल का। सो दिस वाज अबाउट द स्टेटस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हमें दिखाना था इन मॉलिक्यूल्स में इनका स्टेटस क्या है, हाइब्रिडेशन का, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है और शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की। सो दिस वाज अबाउट important features of pi bonds, and we have selected some questions based on the previous lecture and the present lecture. Thanks.